We welcome our Honorable Chief Guest for the event, Shri Sandeep Singh, Honorable Minister of Sports, Government of Haryana, Professor Dheeraj Sharma, Director IIM Rohtak, Professor Kaustav Ghosh, Dean Academics, faculty members, students, and entire IIM Rohtak community. International Day of Yoga celebrates the physical and spiritual prowess that yoga has brought to the world stage. While it is an important source of exercise and healthy activity, millions join in and practice it on daily basis. For many, these routines are a way to connect body, mind, and soul in a way that has existed for centuries. We are delighted to have with us Sri Sandeep Singh. Sir is an Indian professional field hockey player from Haryana and an ex-captain of Indian national hockey team. He has been dubbed as Flicker Singh in the media for his specialization of the drag flip, one of the fastest in the world. Scoring 16 goals, Sir was leading goal scorer in the qualifying tournament for 2012 London Olympics. He has been elected as MLA in 2019 from Peowa constituency and has been sworn in as the Sports Minister of Haryana. We are really honored and delighted to have you with us, sir. Thank you so much for joining. The topic for his talk will be importance of mental health. To begin with, I request Professor Dheeraj Sharma, Director IIM Rohtak, to kindly deliver the welcome address. Namaste, good afternoon. I want to begin by thanking our Honorable Chief Guest, Shri Sandeep Singh, Minister of Sports, Government of Haryana. Thank you for sparing time, sir, for coming to our institution, albeit in an online mode. I'm really grateful that you could come and talk to all the community members of our institution about the importance of yoga and importance of mental strength in achieving excellence. You yourself, being a sports person, you have demonstrated the importance of mental strength in achieving excellence. I would like to also emphasize to the listeners that yoga is an important part of who we are as Indians. If you go abroad on the streets of Europe, North America, people know that there are only four things about India that they know of. And I'm talking about people on the street. One is the IT industry and the IT technicians and IT experts. Second is Bollywood. And third is yoga. Yoga demonstrates our time-tested skills in moving from curative healthcare to preventive healthcare. Yoga, if embraced in the right manner and in the right spirit, can not only keep us physically strong, but also spiritually inclined and mentally strong. I would encourage all the participants to continue to embrace yoga as something that they do in their everyday lives. Honorable Minister, I'm also privileged to inform you that at IIM Rohtak, every day, every morning, there is yoga, there are yoga sessions, and our community members and students participate in those yoga sessions. Honorable Prime Minister of our country has made yoga into an international event. And today, the entire world is celebrating the importance of yoga and how yoga can allow our future generations to be resilient, to be strong. I again wish to thank our Honorable Chief Guest for coming today to talk to us, and also to all the organizers for participating in this very, very important day. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir. Now I would request Shri Sandeep Singh ji to kindly deliver his address. Sir, over to you. Thank you so much. Now you can listen my voice. Yes, sir. Absolutely, sir. Thank you, Guneet ji. Thank you Dheeraj ji and IIM Rohtak के सभी students members. Good evening, नमस्कार. काफी बिजी स्केड्यूल में से
मैं अपने आप को निकाल के आया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। अभी हरियाणा में हमारा खेलो इंडिया हुआ है और वी आर प्लानिंग टू होस्ट सम न्यू थिंग्स इन हरियाणा। तो आज का जो टॉपिक है, संध्या शाम के समय हमने ये प्रोग्राम रखा है क्योंकि कल इंटरनेशनल योगा डे है। और कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो हमारे पूर्वज योगा, मलखम, कबड्डी, कुश्ती, इवन शतरंज, ये सब चीज़ें जो होती थी, इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स नहीं खेली जाती थी। और कुछ खेलें अगर ऐसी होती थी तो वो गांव में खेलने वाली गेम्स होती थी। सबसे बड़ी बात है कि योगा जो है वो हमारे शरीर को, अंदरूनी शरीर को वो बल देती है। हमारे कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम योगा के माध्यम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से वर्किंग, बहुत से इवन जो डेली बेस पे 9 to 5 जॉब करते हैं, उनकी सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा रहती है। और सिटिंग वर्क के टाइम जब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे जो मसल हैं, वो बहुत वीक होने शुरू हो जाते हैं, नर्व्स दब जाती है। तो वो टाइम के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हमारे पास समय क्या है, हम किस प्रकार अपना स्केड्यूल तैयार करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो ये योगा जो है हमारे इंटरनली मस्कुलर जो है उनको स्ट्रॉन्ग करती है, उनमें ताकत देती है। ये कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कोकोनट है, वो बाहर से स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन अंदर से उसको हम तोड़ने के बाद खा सकते हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं, बाहर से अखरोट है, वो बाहर से स्ट्रॉन्ग है, अंदर से खाने के लिए है। अगर हम कोई ऐसे फ्रूट की बात करें जिसके अंदर से वो स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर से वो बहुत सॉफ्ट दिखता है, तो हमारी बॉडी भी इसी प्रकार होनी चाहिए कि हमारी जो लुक है वो, और उसकी इंटरनली जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। बहुत से बच्चे जंक फूड खाते हैं, बहुत से लोग खाना की हैबिट बहुत अलग तरीके की होती है, जैसे मैगी, नूडल्स, बर्गर, कुछ स्ट्रीट फूड टाइप के खाने वाली चीजें। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे ऑर्गन्स को वीक करती हैं। लेकिन अगर हम आज की डेट में अगर योगा या कुछ ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे हम अपने ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एज वेल एज अपनी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेंटल हेल्थ क्या है कि जब आज के कुछ पीरियड पहले चले जाएं, 20 साल पहले, तो सुसाइड की जो रेशो था वो बहुत कम होता था। आज सुसाइड क्या है कि बच्चे बहुत जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। रीजन कि मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। वी आर नॉट प्लानिंग फॉर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान, मतलब हम तैयार नहीं होते कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हो सका तो फिर आई कैन ट्राई दिस। मतलब हम कुछ चीजें को कर ही नहीं पाते। एक जोक कैसे कह लीजिए, एक बात कह लीजिए, वन ऑफ पर्सन सेड कि मैंने फरारी ली है, लेकिन मैं गाड़ी घर से फरारी तब बाहर निकालूंगा जब पूरे शहर की लाइटें ग्रीन होंगी। तो आप इसका मतलब ये है कि जब तक हम गाड़ी बाहर नहीं निकालेंगे, हमें कैसे पता होगा कि ग्रीन लाइट कौन सी है या रेड लाइट कौन सी है या कहाँ पर हमें ब्रेक लगानी है। तो उसी प्रकार जब तक हम अपने आप को ट्राई नहीं करेंगे काम करने के लिए, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए, हारना, जीतना, फेल्यूर होना, ट्राई करना, ये अलग चीजें हैं, लेकिन हम ट्राई नहीं करते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार मेरे से ये हो नहीं पाएगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कुछ भी चीजें इम्पॉसिबल, सब चीजें इम्पॉसिबल नहीं होती। बहुत सी चीजें पॉसिबल भी होती हैं, बहुत सी चीजें हमें सिखा भी देती हैं। आप देख लीजिए, पहले के जमाने में लोग क्या कहते थे कि ये बहुत सियाना है, ये बहुत महापुरुष है, ये बहुत अच्छा है। वो उनको जिंदगी का एक्सपीरियंस होता था। पढ़े लिखे वो कम होते थे, लेकिन जिंदगी का, जीवन का अनुभव होता था। वो अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। हमारे मेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम योगा, हमारे जितने भी हम काम करते हैं, हम उसके लिए हमारा मेंटल हेल्थ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आई कैन से वन थिंग कि हम अगर अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हमारा मेन गोल क्या है, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक
पायलट बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आईएफएस बनना चाहते हो, आईआरएस बनना, कुछ भी टॉप रैंक पर जाना चाहते हो, क्योंकि जब आप अपना एम बनाओगे नहीं तो आप उसको अचीव कैसे करोगे। एम बनाना बहुत जरूरी है अपने आप की लाइफ में। जैसे आपका एम बनता है, एम बनने के बाद आपका असली कार्य तब शुरू होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं मैं देखता हूँ ये ट्राई भी कर लेता हूँ, वो भी ट्राई कर लेता हूँ। पहले हमें अपना ट्राई करने के से पहले हमें अपना एम बनाना है, जो सबसे मुश्किल है। एम बनाने के बाद जो अपना एम बनता है, उस एम बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने ये लाइफ टाइम मेरा अचीवमेंट का एम है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमारा डेली बेसिस गोल क्या है, वीकली गोल क्या है, मंथली गोल क्या है, ईयरली गोल क्या है, और हमारा आफ्टर ईयरली हमारा मेन एम गोल क्या है। वो चीज़ें फिर बनती हैं, और जब ये आप सब चीज़ बना लोगे और उसके बाद उसके ऊपर काम करोगे तो आपको सबसे बड़ा आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 8 घंटे दिन में पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका हेल्थ जो है वो आपको 8 घंटे पढ़ाने को अलाउ ही नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी ही नहीं कर रही है। आप 10 घंटे जॉब के लिए, आफ्टर ऑल अगर आप मेहनत कर रहे हो एक अच्छे रैंक पर जाने की जरूरत है, तो आपका दिमाग उतना वाइज नहीं है कि सोच सके, उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं है तो सोच सके। वो कैसे होगा? वो योगा से स्टार्ट होगा। मैं दोबारा घूम के उसी तरफ लेके आ रहा हूँ कि योगा से आपका बहुत कुछ चीज़ें जो हैं डेवलप होती हैं। आपकी इंटरनली जो माइंड में रहता है ना, यार क्या होगा एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आना है तो रिजल्ट में क्या होगा यार, कितने परसेंट आएगा, मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं, मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, मेरी कटआउट में तक भी पहुंच जाऊंगा कि नहीं, कहाँ तक पहुंच जाऊंगा। फिर उसके बाद जब आपके नंबर आते हैं तो अगर आप उसमें रह जाते हो तो उसके बाद आपका मेंटली इतने वीक हो जाते हो कि आप किसी काम की तरफ नहीं जाते। फिर आप मोस्टली बच्चे वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ड्रग्स के बाद फिर वो फैमिली उनकी जो है उनको नुकसान होता है। तो ये सारी चीज के बाद आपका सारा का सारा गेम जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर है। योगा आपको इतनी पावर देता है। आई डू डेली योगा, लेकिन योगा के साथ आपका जो एक ध्यान होता है जिसको हम कहते हैं कि हमने एक सोचना है। मैं अब आपको सबको एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है आपके खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। लेट्स स्टार्ट विद वन चार्ट। आप एक चार्ट लीजिए, बड़ा चार्ट जो होता है। चार्ट के ऊपर एक सर्कल कीजिए। सर्कल करने के बाद आप सर्कल के अंदर जो भी चीजें लिखेंगे जो आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फूड हैबिट्स कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेली में आप कितने टाइम आप अपने आप की हेल्थ के लिए दे रहे हो, आप अपने कितने घंटे स्टडी कर रहे हो, आपका वो चीजें जो आप कर सकते हो, आप वो चीज लिखिए। और सर्कल के बाहर वो चीज लिखिए जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आपका रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में आप आज आपके टीचर्स का बिहेव आपकी तरफ क्या है, आपके पेरेंट्स आपको बिहेव क्या करते हैं। वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने से, जिसको जो मर्जी कुछ कहते रहे, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी वो, या आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको रोक नहीं पाएंगी। उस चीज की तरफ ध्यान भी नहीं देना। आप अपने गोल की तरफ जो पहुंचाने वाले साधन हैं, हेल्थ, आपकी हार्डवर्क, आपके मेंटल हेल्थ, आपके डेली का जो आपका वर्किंग है, कितने घंटे आपने वर्क करना है, वो सारी आपका फूड हैबिट्स, आपकी मॉर्निंग टू लेके रात तक सोने तक आपकी, और सोने के बाद जब उठते हो तो वो सारी जो प्रक्रिया है 24 घंटे की, उसके बारे में आप देखो, सोचो कि क्या क्या आपके हाथ में है। वो आपने वो सर्कल के अंदर लिखनी है। और वो चार्ट जो है आपके बेड के सामने होना चाहिए। जब आप सोने लगो तो वो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, जब आप उठो तो वो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ काम करते हो तो वो आपको जरूर मिलती है। ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलती। मैंने खुद इन चीजों को प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है। सो ये सारी चीजें होने के बाद आपका मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। बिकॉज आई बिलीव इन गॉड, एंड जो सच्चे मन से और अच्छे भाव से मेहनत करता है
तो वो आगे जरूर बढ़ता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि योगा और आपका मेंटल हेल्थ, ये दोनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा जरूर करें। आप अपने आप को एकांत में जिसको हम कहते हैं कि ध्यान लगाने के लिए जरूर अपना समय निकालें। ये अच्छी हैबिट है। और जो खाना है, मैं क्योंकि साथ में एक और ऐड कर देता हूँ, खाना जो है वो अच्छा खाना खाएं, हेल्थी खाना खाएं। आप देख लीजिए, एक एग्जांपल के लिए हम सब नॉर्थ इंडिया से हैं, जो IIM रोहतक से सभी लोग जो है अभी हमारे मेरे छोटे बड़े भाई, ये परोंठा, आलू का परोंठा होता है, एक एग्जांपल के लिए बात कर लेता हूँ। आप 2 या 3 आलू के परोंठे खा लीजिए सुबह 8:30 बजे, और उसके बाद आप पूरा दिन अपनी बॉडी का रिएक्शन देखना। आपको सुस्ती रहेगी, आप लेथार्जिक रहोगे, आप थोड़ा मन नींद आने का रहेगा, आपकी बॉडी उठने लगेगी। आप डेली 1 हफ्ता खाइए, उसके बाद आप अगले हफ्ते कुछ ऐसी फूड खाइए जिससे कि आपको एनर्जी आए, ना कि आप बॉडी लेथार्जिक हो। तो आप दोनों का डिफरेंस देख लेना, रात को क्या खाना है, दिन में क्या खाना है। खाना ये नहीं है कि देखो, खाना तो अच्छे प्रकार का खाना चाहिए। जंक फूड भी हम खाते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, चलो यार मैगी बना लो, यार बना यार मैगी खाते हैं। ये मैं खुद तकरीबन 1997 से लेकर मैं हॉस्टल लाइफ से निकला हूँ। तो मैं आई नो कि मैगी, जंक फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ठीक है, ओकेशनली महीने में एक आधी बार चलता है वो अपने आप को फूड को टेस्ट को रखने के लिए। लेकिन बहुत से लोग डेली ऐसी इन चीज़ों को खाते हैं, और उसके बाद उनके ऑर्गन्स, अब जैसे कोविड में था, हमने कई ऐसे यंग बच्चे देखे हैं जिनके इंटरनली ऑर्गन्स जो हैं बहुत वीक थे, क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था। तो हमारा योगा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारा अच्छा खाना पीना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, और आपकी ऑर्गन और आपकी फूड हैबिट अच्छी होने से आपका मेंटल स्ट्रेंथनेस जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जितना ध्यान लगाएंगे, जितना जितना अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, आपके इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, आप उतना ही अच्छा स्ट्रांग अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे किसी भी फील्ड के अंदर। क्योंकि आप अपने आप को कहीं पे भी, चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, आप अपने एजुकेशन में जा रहे हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट ही करते हो एग्जाम के रूप में, किसी के इंटरव्यू के रूप में, किसी भी रूप में। तो जब आप अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तो डेफिनेटली आपका प्रभाव जो अच्छा होगा। और कोई भी कंपनी, कोई भी जॉब, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उनके पास अच्छे ऑफिसर्स ना हो। बस यही कहना चाहूंगा, स्ट्रांग रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें, अच्छा फूड खाएं, फूड हैबिट्स अच्छे रखें, और ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि ये कोई भी चीज आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए सहायता नहीं करती, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। शुरू में आपको इसका सेवन करते समय अच्छा लगता है, बाद में इसको छोड़ने के लिए आपको बहुत सी ताकतें लग जाती हैं, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाते, और इससे आपकी फैमिली और आपको दोनों को नुकसान होता है। सो आज के लिए मेरे इतना ही। अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट है कुछ आपको बात करने का, तो यू कैन आस्क। Thank you so much, sir. Sir, can we take 1 or 2 questions? Yeah, sure. As we already have few questions that have come from students. So first question is, what role does a therapist or a coach play if I am unable to acquire mental strength on my own? And if in terms of requiring assistance from others, what is your opinion on that? कोच का और बहुत बड़ा रोल होता है। एंड मदर, यू सेड मदर ना? हेलो गुनीत जी। Sir, therapist or a coach, like Therapist. any kind of assistance that a student can get from outside. कोच का जो रोल होता है लाइफ के अंदर, और आपकी अगर इंजरी है या कुछ है, कोच गिव यू अ गुड एडवाइस इन स्पोर्ट्स। इन जनरल थेरेपिस्ट का जो है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आपको इंजरी है, इफ आई सी कि अगर आपको इंजरी है, तो डेफिनेटली थेरेपिस्ट आपको वो इंजरी से बाहर निकालता है। बेसिक पॉइंट आपके अंदर कितनी विल है। मोस्टली लोग कहते हैं कि विल पावर जो है वो स्ट्रांग बॉडी के पास होती है, विल पावर जो है वो एक बॉडी, ह्यूज बॉडी हो या कुछ इस तरीके की बॉडी हो, तो आपके अंदर ज़्यादा विल पावर होगी। लेकिन मेरा मानना यह है, विल पावर जो है वो छोटे बच्चे में भी होती है। जब वो पैदा होता है तो वो
भूख लगती है तो वो उससे निकलता है, उसको अगर बीमार हो जाता है तो उससे भी आगे बढ़ता है। तो ये विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। कोच एंड फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, ये आपको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये खुद आपकी हेल्प करते हैं, ये हेल्पिंग हैंड के लिए हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे सारी जो मेहनत है, सारी जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथनेस, मेंटल टफनेस, इन चीज़ों से बाहर निकलने के, जितना आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए ही सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको कोई ऐसी इंजरी हो जाए, जैसे आई गॉट अ गन शॉट इंजरी, मेरे को पैरालाइज्ड हुआ, आई वाज ऑन व्हीलचेयर मेनी मंथ्स, बट उससे बाहर निकलने के लिए मेरे फिजियो ने हेल्प की, मेरे डॉक्टर्स ने हेल्प की, मेरी फैमिली ने हेल्प की, मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प की, मेरे वेल विशर्स ने मेरी प्रेयर के माध्यम से हेल्प की। लेकिन करना तो मुझे पड़ा। वो करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। बट कुछ चीजें होती हैं कि हौसला जिसको बोलते हैं, हौसला जो है वो हमें हायर रखना है, लोअर नहीं रखना। क्योंकि आज नहीं तो कल आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव हौसले में, पॉजिटिव माइंड से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंड से आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको अचीवमेंट और अचीव जरूर कर पाएंगे। Thank you so much, sir. There was this. In fact, this was one of the questions you yourself mentioned about your injury and how you recovered. Thank you so much for sharing that. So one last question that we'll take. I know we are running short of time and there is a time constraint. So after pandemic, most of the companies shifted to virtual mode. All businesses, everything is happening virtually, and professionals and everybody is facing a lot of mental issues due to lack of physical interactions and appropriate work environment. So what are your suggestions for a professional to regain mental strength during that time? ड्यूरिंग दैट टाइम, पैंडेमिक के टाइम जो ये मेंटल टफनेस की बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि सब लोग घर में थे। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस के कारण, बिजनेस कुछ ऐसे बिजनेस थे जो पैंडेमिक के कारण लोगों के बिल्कुल बंद हो गए, इनकम आनी बंद हो गई, स्टूडेंट्स को स्टडी नहीं जा कर सकते, ऑनलाइन सब कुछ चीजें शुरू हुई। ये सारी चीजों का क्या था कि एक फ्रस्ट्रेशन, हम कह सकते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट थे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, यार मैं कोई ड्राइव पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपने हॉलीडे नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन एक व्यक्ति से मेरी बात चल रही थी कुछ समय पहले, तो मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा कि ये मतलब ये 2019 से अभी तक हम लोग बहुत कुछ लॉस कर गए, तो मतलब क्या है इसका। तो ही सेड कि बेस्ट पॉइंट ये है कि 2019 में जब कोविड आया, इंडिया में 2020 में जैन में, फेब में, इस समय पर कोविड का जो पहले पेशेंट आए, तो वो समय से लेके अभी तक जिन लोगों ने अपने परिवार को बचाया है, वही सबसे बड़ा गहना है, वही सबसे बड़ा हमारा हथियार है, और वही सबसे बड़ा हम अपने आप को कहते हैं ना कि मेरी प्रॉपर्टी वही है, मेरी जमीन जायदाद वही है जिन्होंने अपनी फैमिली को बचाया है। सो क्या है कि हम अपने इंडियंस बात करते हैं कि यार मैं अकेला रह गया, मैं बात नहीं कर रहा था। इफ यू सी यूरोपियंस, 18 साल होते ही बच्चे पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। पेरेंट्स जो हैं, वो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मैंने वहाँ देखे हैं जो बच्चों से पैसा चार्ज करते हैं घर में रहने के लिए। वी आर लकी वी हैव सच ए गुड पेरेंट्स। वो ऐसे पेरेंट्स होते हैं हमारे हिंदुस्तान के कि वो मरते दम तक अपने बच्चों की सपोर्ट में रहते हैं। वहाँ पर वो यूरोपियंस में ऐसे फैमिलीज भी हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं पेरेंट्स, और बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो उनको कहते हैं आप अपना खुद का कमाओ, खुद का खाओ, और वो रिटायरमेंट के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचकर वो सेल आउट करके वर्ल्ड टूर पे भी जाते हैं, फिर वो एंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ पर हमें जनरेशन टू जनरेशन हमारी आगे पेरेंट्स के द्वारा मिलती है। सो एंड ऑफ द पॉइंट ये है कि पेंडेमिक ने हमें जरूर झटका दिया, लेकिन ये नेगेटिव वे में हम सोच रहे हैं। अगर पॉजिटिव वे में सोचें, आज आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन वी आर स्टिल इन टच। ये पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी मीटिंग्स हम कर पाएंगे, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। नहीं तो ये ट्रैवल टाइम शॉर्ट हो रहा है, हमारे हेल्थ जो हैं पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए कि मेडिकल सुविधाएं कितनी बढ़ गई हैं, हम कितने हाइजेनिक रूप में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सो मेनी थिंग्स हमने इम्प्रूवमेंट की है। बात वही है कि एक गिलास हो, पानी आधा
उसमें डाला हो, तो किसी से पूछा जाए जो नेगेटिव होगा कहेगा आधा खाली है, लेकिन जो पॉजिटिव होगा कहेगा आधा भरा है। सो ऐसी चीजें अगर हम नेगेटिव के लिए देख रहे हैं कि हम अकेले रह गए हैं, हम इस चीज से मेंटली वीक हैं, अगर हम अपने आप को भी टाइम दे पा रहे हैं और अगर हम उसी चीज के लिए, क्योंकि हम नास्तिक से आस्तिक की तरफ जाएं तो हम भगवान की तरफ सोच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी फैमिली को समय दे रहे हैं। वो एक जोक आ रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि वो पहले 10 लोग बैठे होते हैं घर के परिवार वाले, सभी लोग मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट करते रहते हैं। तो वो जब कुछ दिन के लिए मोबाइल बंद हुआ तो वो अपने फैमिली वालों से बात किया, तो वो फिर उस दिन अगले दिन ग्रुप में डालता है, यार मेरे को तो पता ही था मेरे फैमिली वाले इतने अच्छे हैं। तो ये जोक था। तो इस प्रकार हमने अपने फैमिली को समय भी दिया, हमने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर क्या है। कुछ लोगों ने, अब आप देख लीजिए मदर्स, आप उनके बच्चों की मदर्स, या फैमिली में जो हस्बैंड उनकी वाइफ, या घर में उनकी जो बेटियां हैं उनके अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने कुकिंग की, वो खाना बनाया जो बाजार से खाते थे, वही खाना उन्होंने घर में इंटरनेट के माध्यम से देखकर सीखकर बनाया। जिसका कारण ये था कि फैमिली वालों ने जंक फूड छोड़कर, स्ट्रीट फूड छोड़कर उन्होंने अपना खाना बनाया और सेम टेस्ट अपने फैमिली को खिलाया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत सी चीजें सीखी भी हैं। Thank you so much, sir, for such a wonderful talk and your views. I now request Professor Kaustav Ghosh, Dean Academics, to kindly deliver the vote of thanks. We are really thankful to Sri Sandeep Singh ji for his insightful address. Many events are currently going on in the state, and despite his busy schedule, he was kind enough to give us time. He has mentioned a few beautiful points, and I think I would just like to reiterate for our students some of those things. He gave the example of coconut that hard from outside and soft from inside. Then he also mentioned about the cases of psychological strain followed by suicides are on the rise, and it is happening largely because the present young generation does not believe much in alternate planning, and therefore there is a lesson for all of us that when we plan for an event, we also must keep our alternate plans ready. Then, in a very lucid manner, he gave us few simple steps, like we should first focus on our aim that we want to achieve. And then once we set the aim, we should focus on attempts of work and not just on the outcome. Because many a times we get too much driven by the outcome and we do not put in enough effort or attempts to work, and therefore we fail to achieve success. While doing all such things, we also have to balance between our physical and mental strength. He also gave us a very simple exercise, I believe, that is extremely useful for the students how to focus. Like he said that we can write in a circle what we want to achieve, and then outside the circle, what are the things that distract us to achieving that. That basically what we can control on our own, and what are the things beyond our control. And last but not the least, he emphasized both on physical strength as well as mental strength. So food is important both for body as well as thoughts are important for mind to keep ourselves focused in this stressful environment. So I once again express my sincere gratitude and heartfelt thanks to Sri Sandeep Singh ji for giving us his valuable time, coming here online to address our students on this eve of International Yoga Day. Thank you so much. Thank you.